Now today we will start with Article 21A, that is right to education. It says that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine. अब ये जो आर्टिकल है, it is the result of the Supreme Court's judgment in the case of उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. राइट टू एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको आर्टिकल 21 में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 21A आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन को इम्प्लिसिट माना था एज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. तो जो 21A है वो पार्लियामेंट ने इंसर्ट किया इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड इट इज़ टू बी इन फोर्स फ्रॉम 1st of April 2010. अब इस पे आपको दो ही केसेस का ध्यान रखना है. एक है मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका और उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है. 21A पे मोस्ट प्रोबेबली एक शॉर्ट नोट आएगा जिसमें आपको ये बताना है कि भाई आर्टिकल 21A क्यों इंट्रोड्यूस हुआ और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स थे राइट टू एजुकेशन को लेके और किस अमेंडिंग एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में और कब से फोर्स में है. ठीक है. तो पहली बार राइट टू एजुकेशन को लेके जो सवाल उठा था वो दो जजेस की बेंच के सामने उठा था इन द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. Its citation is AIR 1992 Supreme Court page number 1858. अब इसमें क्या फैक्ट्स थे? Now, what happened in this case was that with a view to eliminate the practice of collecting capitation fee for admitting students in educational institution, the Karnataka legislature passed an act purporting to regulate tuition fee in the private medical colleges in the state. By issuing a notification under the act, the government fixed rupees 2000 per year as tuition fee payable by candidates admitted against the government seats. But the other students from the states were to pay 25,000 rupees per annum. Indian students from outside the state were to pay 60,000 per annum. तो बेसिकली क्या हो रहा था, जो भी स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट सीट्स के कोटा में फॉल करते थे उनको पे करना था ₹2000 पर ईयर एज ट्यूशन फी. ठीक है. और जो कर्नाटका स्टेट के बाकी स्टूडेंट्स थे उनको पे करना था ₹25,000 पर एनम. और बाकी के जो इंडियन स्टूडेंट्स थे वो केम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कर्नाटका, उनको पे करना था ₹60,000 पर एनम. तो एक रिट पिटीशन फाइल हुआ in the Supreme Court to quash the notification under Article 14 of the Constitution. अब नोटिफिकेशन को जस्टिफाई करते हुए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने ये आर्ग्यू किया that they did not receive any financial aid from the government and so they must charge much higher fee from private students to make good the loss incurred on government students. The Supreme Court accepted that the Constitution does not expressly guarantee the right to education as such as a fundamental right, but reading cumulatively Article 21 along with the directive principles contained in Article 38, 39 Clause A, Article 41 and 45, it opined that it becomes clear that the framers of the Constitution made it obligatory for the state to provide education for its citizens. Supreme Court further said that without making the right to education under Article 41 a reality, the fundamental rights would remain beyond the reach of the large majority which is illiterate. The fundamental rights including the freedom of speech and expression and the other rights guaranteed under Article 19 cannot be fully appreciated and fully enjoyed unless a citizen is educated and is conscious of his individualistic dignity. Further, life in Article 21 means right to live with human dignity. Right to life is the compendious expression for all those rights which are basic to the dignified enjoyment of life. Thus, the Supreme Court ruled that the right to education flows directly from right to life and that the right to education being concomitant to the fundamental rights, the state is under the constitutional mandate to provide educational institutions
at all levels for the benefit of its citizens. अब इस केस में जो मेन क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था whether it would be permissible for the private and expressly speaking private but governmental recognized educational institutions to charge capitation fee for the admission of students. ठीक है, तो मेन क्वेश्चन कैपिटेशन फी से रिलेट करता था. तो सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटेशन फी को बोला कि इट इज़ नथिंग बट अ प्राइस फॉर सेलिंग एजुकेशन एंड इट अमाउंट्स टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन विच एडवर्सली अफेक्ट्स द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस को कैरेक्टराइज किया एज टीचिंग शॉप्स जो इतनी हेफ्टी कैपिटेशन फी चार्ज करते हैं. एंड द concept of teaching shops is contrary to the constitutional scheme and it is wholly abhorrent to the Indian culture and its heritage. Supreme Court continued and said that charging capitation fee amounts to discrimination on a class basis and thus it is denial of Article 14 because a poor meritorious student is denied admission to these institutions because he has no money whereas a rich person can pursue education. Such a treatment is patently unreasonable, unfair and unjust. The capitation fee was held to be violative of Article 14. फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक एब्सोल्यूटिस्ट व्यू लिया टू प्रोवाइड एजुकेशन एट ऑल लेवल्स. मैं वो पैराग्राफ रीड करता हूँ आपके लिए. सुप्रीम कोर्ट सेड वी होल्ड दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू एजुकेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. The state is under an obligation to establish educational institutions to enable the citizens to enjoy the said right. The state may discharge its obligation through state-owned or state-recognized educational institutions. Charging a capitation fee in consideration of admission to educational institution is a patent denial of a citizen's right to education under the constitution. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट व्यू क्या है. वो ये है कि स्टेट को हर लेवल पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करने हैं. तो सिर्फ 6 से 14 साल के बीच ही नहीं, हर लेवल पे, प्राइमरी, सीनियर, यूनिवर्सिटी लेवल एसेट्रा. यू गेट द पॉइंट. तो मोहनी जैन में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्सपेंसिव व्यू लिया था कि स्टेट की कितनी ऑब्लिगेशन है टू प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरीवन एट ऑल लेवल्स. अब देखिए जो रिसोर्सेज हैं स्टेट के वो काफ़ी लिमिटेड हैं, तो हर लेवल पे तो वो प्रोवाइड कर नहीं सकता और वो एक इम्पॉसिबल फाइनेंशियल बर्डन स्टेट गवर्नमेंट्स पे इम्पोज करेगा अगर हर लेवल पे एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करनी पड़ गई एज अ फंडामेंटल राइट. सो अकॉर्डिंगली दिस मैटर दैट वेदर द स्टेट कुड परमिट प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू चार्ज कैपिटेशन फी फॉर एडमिशन ऑफ अ स्टूडेंट केम टू बी रिकन्सिडर्ड. ठीक है, ये मैटर फिर रिकन्सिडर हुआ कि ये जो प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, क्या वो कैपिटेशन फी चार्ज कर सकते हैं. देखिए मोहनी जैन में तो बिल्कुल ही मना कर दिया था, पर अब ये इशू रिकन्सिडर हो रहा है इन द केस ऑफ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इट वाज कंसिडर्ड बाय अ लार्जर बेंच ऑफ 5 जजेस. अब सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया इस proposition को that having regard to the fundamental significance of the education to the life of an individual and the nation, the right to education is implicit in and flows from the right to life guaranteed by Article 21. But the parameters of this right are not absolute and they have to be determined in the light of directive principles contained in Article 41, Article 45 and Article 46. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट की ऑब्लिगेशन थी टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ उसको लिमिट किया. मोहनी जैन में एब्सोल्यूट व्यू था, पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहनी जैन के जो एब्सोल्यूटिस्ट व्यू जो लिया गया था उसको रिस्ट्रिक्ट किया और बोला कि एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अंटिल ही कंप्लीट्स द एज ऑफ 14 ईयर्स. ठीक है, मोहनी जैन में हर लेवल पे बोला था, पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्री एजुकेशन अंटिल ही कंप्लीट्स the age of 14 years. Beyond that stage, जो state का obligation है to provide the education is subject to the limits of economic capacity and the development of the state. So the obligations created by Article 41, 45 and 46 can be discharged by the state either by establishing institutions of its own or by aiding, recognizing and
or granting affiliations to private educational institutions, and taking note of inadequate outlay on the education and limited economic capacity of the state to finance education, Supreme Court ruled that private educational institutions, both aided and unaided, are a necessity in India, but commercialization of education cannot and should not be permitted. फिर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ता है कैपिटेशन फी वाले पॉइंट पे और डिनाउंस करता है उसको फिर से, बोलता है कि कैपिटेशन फी मीन्स चार्जिंग और कलेक्टिंग अमाउंट बियॉन्ड व्हाट इज परमिटेड बाय लॉ, एंड ऑल द एक्ट्स हैव डिफाइंड दिस एक्सप्रेशन इन दिस सेंस ओनली. So we must strive to bring about a situation where there is no room or occasion for the management or anyone on its behalf to demand or collect any amount beyond what is permitted. अब इस पे एक सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन भी देता है that charging the permitted fees by the private institutions, private educational institutions, which is bound to be higher than the fees charged in similar governmental institution, by itself cannot be characterized as capitation fee. इस बात का ध्यान रखिएगा. अब देखिए, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस देखें और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस देखें सिमिलर लेवल पे, तो आप पाएंगे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की फ़ी हायर होती है. तो दैट बाय इटसेल्फ डजंट मेक दैट अ कैपिटेशन फ़ी. जो कैपिटेशन फ़ी की प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि चार्जिंग और कलेक्टिंग एन अमाउंट बियॉन्ड व्हाट इज परमिटेड बाय लॉ. तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने लेवी ऑफ कैपिटेशन फी को डिनाई किया और उसे डिनाउंस किया, पर साथ ही साथ ये भी बोला कि जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो हायर ट्यूशन फी चार्ज कर सकते हैं, बट नॉट एक्सीडिंग द सीलिंग लिमिट फिक्स्ड. ठीक है. फिर थोड़ा आर्टिकल 14 का भी डिस्कशन हुआ था उसमें, और आर्टिकल 14 के कॉन्टेक्स्ट में इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट बोलता है दैट आर्टिकल 14 compels the state educational institutions to admit students on merit subject to any permissible reservation, wherein again merit inter se has to be followed. The educational activity being carried out by private institution is supplemental to the main effort being made by the state, and therefore article 14 would apply to the main activity and also would apply equally to the supplemental activity. अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ना कि जो स्टेट है वो राइट टू एजुकेशन को कैसे अकम्प्लिश करेगा, या तो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए और साथ ही साथ वो चाहे तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करे, उनको एफिलिएशंस ग्रांट करे या उनको एड करे. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला कि जो मेन एक्टिविटी है जो स्टेट खुद के इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर रहा है उस पर तो आर्टिकल 14 अप्लाई करेगा ही, पर जो सप्लीमेंटल एक्टिविटी है उस पर भी अप्लाई करेगा. ठीक है. देन व्हाट इज द सप्लीमेंटल एक्टिविटी? दैट इज ग्रांटिंग एड टू द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिकग्नाइजिंग देम एंड ग्रांटिंग देम एफिलिएशंस एसेट्रा एसेट्रा. तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ के बोलता है एज आर्टिकल 14 अप्लाइज टू द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, its application cannot be excluded from the supplemental activity. The implication of this statement is that even the private educational institutions are required to admit students on merit and merit alone. The policy of admissions should not be based on money considerations but on merit. Meritorious but poor students ought not to be excluded by unmeritorious but rich students. Merit should be a consideration for admission in private colleges. Supreme Court accordingly evolved a scheme as regards to the level of fees chargeable by the private educational institutions as well as a policy of admission. This scheme was in a nature of guidelines which the appropriate governments and the affiliating authorities shall impose and implement in addition to such other conditions and stipulations that they may think appropriate for the grant of permission, recognition or affiliation as the case may be. इसी चीज़ पे और इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वेयर द recognition or affiliation is granted but aid is not granted, तब वहाँ पे ऐसा इंसिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उतनी फ़ी चार्ज करेगा जितना कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स चार्ज करते हैं सिमिलर कोर्स पे. ठीक है. और ये जो स्कीम जो सुप्रीम कोर्ट ने
ले डाउन की थी उन्नी कृष्णन के केस में, इट वॉज कन्फाइंड टू प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेजेस ओनली which were private medical colleges, dental colleges, and colleges imparting nursery, pharmacy, and other courses allied to the medicine, private engineering colleges, and including those imparting technical educations in electronic and computer science, etc. अब ये जो स्कीम थी, it was to apply and govern the admissions to the professional colleges commencing from academic year 1993 to 1994. अब ये जो स्कीम है ये थोड़ी टेक्निकल है, ठीक है, वो उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये जो ऑब्जर्वेशंस मैंने बताया वही रेलेवेंट है, उससे ज़्यादा आपके लिए रेलेवेंट नहीं है एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए. देखिए आर्टिकल 21A पे शॉर्ट नोट आएगा, ठीक है, शॉर्ट नोट आएगा या एक सवाल आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं, पर ये जजमेंट इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको पूरी चीज़ पता हो, ठीक है. यही उन्नी कृष्ण ने जो स्कीम ले डाउन की थी ना, ये TMA पाए फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में भी रेफर हुई थी. तो उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द स्कीम इन उन्नी कृष्णन्स केस हैज़ द इफेक्ट ऑफ नेशनलाइजिंग एजुकेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स, दैट इज़ द राइट ऑफ प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस टू गिव admissions and to fix the fee. By framing the scheme, which has led the state governments legislating in conformity with the scheme, the private institutions are undistinguishable from the government institutions, curtailing all the essential features of the right of administration of private unaided educational institutions can neither be called fair or reasonable. तो TMA पाए फाउंडेशन केस में हुआ ये था कि जो भी स्कीम सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम करी थी उन्नी कृष्णन विच रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ एडमिशन एंड फिक्सिंग द फी, उसको रिप्लेस कर दिया है बाय अनदर जुडिशली इवॉल्व स्कीम, ठीक है. वो भी टेम्परेरी मेजर था, TMA पाए फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. फिर आगे इलेबोरेट होता है इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, फिर PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आता है. तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि जुडिशियल व्यू ना थोड़ा फ्लिप फ्लॉप करते हैं इस पॉइंट पे. ये वाला जो डिस्कशन होगा ना, ये हम लोग करेंगे जब हम लोग राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन को डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें वो मेन आता है. ये जो पॉइंट है ना ये उधर का है, ये साथ ही में लगा हुआ था तो इसलिए मैंने बोल दिया. तो बेसिकली उन्नी कृष्णन में आपको सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मोहनी जैन का कौन सा पॉइंट अपहेल्ड किया, वो इस पॉइंट को अपहेल्ड किया कि राइट टू एजुकेशन इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21, बट किस पॉइंट से डिसएग्री कर दिया कि मोहनी जैन का जो ओवर एक्सपेंसिव व्यू था कि हर स्टेज पे राइट ऑफ एजुकेशन है विद नो रिगार्ड टू लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी, उसको लेके उन्नी कृष्णन ने एक थोड़ा नैरो व्यू लिया और बोला कि every citizen has a right to free education till he completes the age of 14 years. Beyond that stage, the state's obligation to provide education is subject to the limits of economic capacity and the development of the state. इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. कैपिटेशन फ़ी को लेके कोई ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा डिस्कशन कर दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ कैपिटेशन फ़ी बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द व्यू दैट एजुकेशन शुड बी कमर्शलाइज्ड, ठीक है. उसको टीचिंग शॉप्स की तरह सुप्रीम कोर्ट बोलता है और ये बोलता है इट इज़ अगेंस्ट द इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज. इंडिया में सिंस एंशियंट टाइम्स देर वाज नो सच व्यू जहाँ पे एजुकेशन को कमर्शलाइज किया जाए, ठीक है. इनफैक्ट ऐसा कोई व्यू पॉइंट की बात भी होती थी अगर एंशियंट इंडिया में, देन इट वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेवेस्ट सिंस, ठीक है. तो आर्टिकल 21A पे हमारा डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. इससे ज़्यादा आपको आर्टिकल 21A में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी ये कंप्लीट हो जाए फर्स्ट स्टेप, तो उसके बाद आप जितना एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, जजमेंट्स मैंने बता ही दिए हैं, उनको पढ़ लीजिएगा पूरा, पर रेलेवेंट नहीं है ये भी बता दूँ. पहले इन पॉइंट्स पे फोकस करना है, जब ये पॉइंट्स आपके नॉलेज बेस का पार्ट बन जाए तभी नॉलेज बेस को एडवांस करना चाहता है, ठीक, एडवांस किया जाता है, ठीक है. अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 22 पे, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. इट सेज दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट, nor shall he be denied the right to consult and be defended
by a legal practitioner of his choice. तो क्लॉज 1 से ऑफ आर्टिकल 22 दो रूल निकलते हैं. पहला रूल है इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और दूसरा रूल है राइट टू कंसल्ट अ लॉयर. ठीक है. अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, केस का नाम है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस शोभाराम, AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1910, उसमें बोला था दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इज मैंडेटरी अंडर आर्टिकल 22 clause 1, and Supreme Court said that a person's personal liberty cannot be curtailed by arrest without informing him as soon as possible why he is arrested. उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि वो अरेस्ट क्यों हुआ है. अब मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ. इस पर देखिए, अथॉरिटीज़ का रिप्रोटेक्शन ज़रूरी नहीं है, आपको बस एसेंस जानना है. और एसेंस ये है कि रीज़न behind the rule requiring the communication of ground to the person arrested is to enable him to prepare his defense and to move the court for bail or for a writ of habeas corpus as the case may be. अगर आप किसी को यही नहीं बताएंगे कि वो क्यों अरेस्ट हुआ है, लेट अस सपोज यू आर अ पुलिस ऑफिसर और एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हु इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट अ पर्सन, आप उसे बताएंगे ही नहीं वो क्यों अरेस्ट हुआ है, तो वो अपना डिफेंस कैसे प्रिपेयर करेगा, वो बेल के लिए कैसे मूव करेगा, या वो हीबेस कॉर्पोरेट की writ के लिए किस ग्राउंड पे अप्लाई करेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में. तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि क्यों वो अरेस्ट हुआ है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच ही इज अरेस्टेड. अब ये रूल कब कंप्लीट होगा? ये रूल तब कंप्लीट होगा जब द पर्सन अरेस्टेड हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड ऑन अ सफिशिएंट स्केल to enable him to understand that why he has been arrested and to give him an idea of the offense which he is alleged to have committed. ठीक है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि each and every detail has to be mentioned of the offense. नहीं. ठीक है. Each and every या full details of the offense need not be given, but इतनी information तो देनी ज़रूरी है which is sufficient to enable him to understand that why he has been arrested and to give him an idea of the offense which he is alleged to have committed. अब कौन डिसाइड करेगा on the question of sufficiency of the information which has been supplied to the person arrested? That has to be decided by the court. ये कोर्ट डिसाइड करेंगे. ठीक है. एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं डिसाइड करेगी. और जहाँ भी कोर्ट पाएगा कि the information which has been supplied to the arrested person is inadequate, वहाँ पे arrest will become unlawful. तो ऐसी सिचुएशन मान लीजिए जहाँ पे पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है और उसको बोल देता है कि यू हैव बीन अरेस्टेड अंडर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ IPC, पर ये नहीं बताता है कौन से सेक्शन के अंडर. ठीक है. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन इज़ नॉट सफिशिएंट. अब इस आर्टिकल को अगर आप CRPC के सेक्शन 50 से इंटरलिंक करेंगे तो बेहतर रहेगा. देखिए, आर्टिकल 22 में बहुत से ऐसे ग्राउंड्स हैं जो आपको CRPC में भी मिलेंगे. ठीक है. तो ये बेटर रहेगा कि आप इसको इंटरलिंक करें, इससे आपकी जो नॉलेज है ना बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव दिखती है. अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है राइट टू कंसल्ट अ लॉयर. ये भी मैंडेटरी है. तो सेकेंड रूल postulates that if there is an accusation against the person arrested, then he should be enabled to defend himself by engaging a legal practitioner of his choice. ये भी mandatory है. ठीक है. It is not a discretionary article, it is a mandatory thing. This provision is mandatory, not directory. अब सवाल उठता है राइट कब से अराइज करेगा? सो द राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर वुड स्टार्ट फ्रॉम द डे ऑफ अरेस्ट. जब अरेस्ट हुआ है, जिस दिन में अरेस्ट हुआ है, वहीं से वो अराइज कर जाएगा. ठीक है. It would arise as soon as the person is arrested. देखिए, ये जो लॉयर्स को लेके प्रोविज़न है, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट क्यों है? Why an arrested person has been granted a right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice? Reason is very simple. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी एजुटेशन किए. कई बार उनके लीगल राइट्स डिनाई किए गए उनको.
तो जो कॉलोनियल टाइम्स में सफरिंग थी, इट वॉज वेरी फ्रेश इन द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज़ वाई दे मेड श्योर कि जो हम संविधान बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन ना आए जहाँ पे किसी पर्सन के लीगल राइट्स छीन लिए जाएं। और भाई आपके लीगल राइट्स कैसे छीने जा सकते हैं? अगर आपको लॉयर प्रोवाइड ही ना हो, लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड ही ना हो। क्योंकि देखिए, आप लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉयर्स हैं, एज द केस में बी, तब भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि जहाँ पे आपको सारे के सारे लॉस पता है ना? तो जो आम आदमी होता है उसको तो बेसिक लॉ का पता नहीं होता। आप लोग को कम से कम बेसिक लॉ का पता होता है, उसी की वजह से यू नो दैट दे आर मेनी डिसिप्लिन्स इन लॉ जिसको एक ही लाइफ टाइम में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। उसी वजह से कोई टैक्स लॉयर है, कोई क्रिमिनल लॉयर है, कोई सिविल लॉयर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिमिनल लॉ को लेके स्पेशली, और बाकी स्टैट्यूट्स को लेके जहाँ पे अरेस्ट और डिटेंशन का रिस्क है, उनको लेके जनरली एक राइट बना दिया है कि अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस एंड ही शैल बी इंटाइटल्ड टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। अब इस पे मैं शोभाराम की जजमेंट पे फिर से आता हूँ। मैं रिटरेट कर देता हूँ क्या नाम है पूरा। द नेम इज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस शोभाराम, ठीक है, AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1910। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अ पर्सन who is arrested has a right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. This provision does not say that this right is lost no sooner than he is released on bail. The word defended clearly includes the exercise of the right so long as the effect of arrest continues. And Supreme Court further said in this judgment by a majority, that is 3:2, 3 जजेस इसके फेवर में थे, कि the right to be defended by one's own counsel cannot be taken away by an ordinary law। मतलब ordinary statutory law से उसको लिया नहीं या छीना नहीं जा सकता। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि it is not sufficient to say that a person who is exposed to a fine is not in danger of losing his personal liberty and has no right to be defended by a lawyer। Personal liberty, Supreme Court is saying, personal liberty is invaded by arrest and continues to be restrained during the period a person is on bail, and it matters not whether there is or is not a possibility of imprisonment। तो ये point irrelevant है कि imprisonment की possibility है या नहीं। A person arrested and put on his defense against a criminal charge which may result in a penalty is entitled to the right to defend himself with the aid of a counsel, and any law that takes away this right offend against the constitution। तो कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जा सकता जहाँ पे देयर इज अ थ्रेट ऑफ डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट और लॉ ये प्रोवाइड कर दे कि यू डोंट हैव अ राइट टू कंसल्ट और बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था इन द स्टेट एक्ट विच बार्ड एन अरेस्टेड पर्सन टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। इस केस में क्या हुआ था कि द पर्सन कंसर्न वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रेसपास, जो 447 IPC में पनिशेबल है, ठीक है। ही वॉज देन रिलीज्ड ऑन बेल एंड ही वॉज लेटर ब्रॉट फॉर ट्रायल बिफोर द न्याय पंचायत। पंचायत ने क्या किया, एक फाइन इम्पोज किया, as the panchayat had no power to impose the punishment of imprisonment on him, and because of the above mentioned impugned provision he could not be defended by a lawyer before the न्याय पंचायत। जो प्रोविजन था वो था सेक्शन 63 ऑफ द मध्य भारत पंचायत एक्ट 1949, ठीक है। तो इस प्रोविजन की वजह से ही कुड नॉट हायर अ लॉयर टू डिफेंड हिमसेल्फ बिफोर अ न्याय पंचायत। तो उसने वो प्रोविजन ही चैलेंज कर दिया। बाय अ मेजॉरिटी द प्रोविजन वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस केस में काफ़ी लिबरल व्यू लिया गया दैट वंस अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड इवन इफ ही इज रिलीज्ड ऑन बेल ही हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑल्दो हिज पर्सनल लिबर्टी मे नॉट बी इन जेपर्डी। तो ये आर्ग्यूमेंट काम नहीं करेगा कि देखिए उसको उस पर तो सिर्फ फाइन इम्पोज होगा, तो वहाँ पे
राइट टू बी डिफेंडेड अ लॉयर या राइट टू कंसल्ट अ लॉयर इग्नोर किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यू को डिसएग्री करार दे दिया था. सुप्रीम को अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इट टोटली डिसएग्रीज विद दैट लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट. सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जब पर्सन अरेस्ट होता है और उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज है which may result in a penalty, then he is entitled to defend himself with the aid of a counsel, and any law that takes away this right would offend the constitution, specifically article 22 clause 1. अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ऐसा ही व्यू पॉइंट था, और ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में उनके यहाँ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके हिसाब से कि किसी क्रिमिनल केस में, मतलब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये है यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट का कि किसी क्रिमिनल केस में वेयर द डिफेंडेंट इज़ अनेबल टू एम्प्लॉय अ काउंसिल और खुद भी इनकेपेबल है खुद को डिफेंड करने में ड्यू टू इग्नोरेंस, फीबल माइंडेडनेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, किसी भी ग्राउंड पे, तो कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है, चाहे डिफेंडेंट रिक्वेस्ट करे या ना करे, टू असाइन अ काउंसिल फॉर हिम. अब आपको पता है, मैंने आपको आर्टिकल 21 में कई केसेस बताए होंगे, स्पेसिफिकली सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूटी बना दी थी ट्रायल कोर्ट्स की टू एम्प्लॉय अ काउंसिल, है ना. तो उन जजमेंट्स का इंस्पिरेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है. ठीक है. अब आप ये भी जानना चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में कौन सा केस ऐसा था जिसने ये पॉइंट बनाया, तो उसमें आपको बता देता हूँ. उस केस का नाम है गिडियन वर्सेस वेन ब्राइट, वॉल्यूम नंबर 372, सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 335, 1963 में ये आया था. यहाँ पे गिडियन वॉज चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग पेटी लार्सनरी, चोरी की थी मतलब, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द राइट टू काउंसिल सो फंडामेंटल as to declare Gideon's trial a mistrial because Gideon could not afford a counsel and the state failed to provide him with one. ठीक है. अब यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में आप पाएंगे नहीं कि वहाँ पे एक्सप्रेसली प्रोविजन है कि अक्यूज पर्सन के पास है राइट टू अ काउंसिल, बट यूनाइटेड स्टेट के सुप्रीम कोर्ट ने बाय द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्यू प्रोसेस क्लॉज ये राइट बना दिया था. हमारे यहाँ तो खैर ये पॉइंट एक्सप्रेसली था, लेकिन बस दिक्कत ये थी कि अगर मान लीजिए किसी अक्यूज्ड को लॉयर नहीं मिला या स्टेट ने एम्प्लॉय नहीं किया, तो ऐसे ट्रायल का क्या होगा. उस पर आपका आया था सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपको याद होगा, मैंने आपको कई बार बताया है. उसमें ट्रायल वाज विशिएटेड क्योंकि उनको लॉयर नहीं प्रोवाइड किया गया था, और ये रूल बन गया. आजकल जो आप रेजोल्यूशन देखते हैं ना कि कोई हाई प्रोफाइल केस होता है और बार काउंसिल्स, स्टेट बार काउंसिल तो नहीं ऐसा रूल फ्रेम करती या रेजोल्यूशन पास करती, एक्चुअली आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बार एसोसिएशंस हैं वो रेजोल्यूशन पास करते हैं कि वी विल नॉट डिफेंड द पर्टिकुलर अक्यूज्ड. तो ऐसे में सिचुएशन में आप जान लीजिएगा कि सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का रूल अप्लाई कर दिया जाएगा और ट्रायल विशिएट हो जाएगा, एंड द अक्यूज्ड मे इवन बी इंटाइटल्ड टू एन एक्विटल. ठीक है. तो अगली बार आप कभी भी ऐसा एसोसिएशन के थ्रू कोई रूल देखें, बार एसोसिएशन कोई ऐसा रूल या रेजोल्यूशन पास करें कि सर्टेन केसेस में हम नहीं डिफेंड करेंगे अक्यूज्ड को, तो जान लीजिए ऐसा रेजोल्यूशन इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है. अब क्लॉज 2 पे आ जाते हैं आर्टिकल 22 के. वो कहता है एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the set period without the authority of magistrate. अब CRPC से आप इसको सेक्शन 57 से लिंक करेंगे. ठीक है. सेक्शन 57 और द CRPC में भी आपको एक ऐसा ही पॉइंट मिलेगा. 24 घंटे होने के बाद इट इज़ ओनली द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हु हैज़ द अथॉरिटी under section 167 of the CRPC to keep a person in custody or to detain him in custody. Limited circumstances में executive magistrate के भी पास वो authority आती है, पर सिर्फ तभी जब judicial magistrate ना available हो. तो इसको section 57 of the CRPC से ज़रूर इंटरलिंक करिएगा. ठीक है. ये भी पोजीशन मैंडेटरी है. ठीक है. अब इसमें एक बड़ा ही टिकलिश क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है.
ठीक है। ये है कि देखिए मैजिस्ट्रेट के भी पास पावर ऑफ अरेस्ट है ना। अगर आप नहीं जानते देन देयर इज सेक्शन 44 ऑफ द सीआरपीसी जो एम्पावर करता है बोथ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू अरेस्ट अ पर्सन, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ मैजिस्ट्रेट विदाउट वारंट, तो क्या ऐसी सिचुएशन में ये आर्टिकल का क्लॉज अप्लाई करेगा? द आंसर इज यस। वो इस पे एक केस बताता हूँ, उसका नाम है हरिहरानंद वर्सेस जेलर, AIR 1954, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पेज नंबर 601। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ मैजिस्ट्रेट विदाउट अ वारंट, it is not sufficient for the purpose of article 22 clause 2 to produce the person arrested before the same magistrate। जिस मैजिस्ट्रेट ने अरेस्ट किया और उसी के सामने आपने फिर प्रोड्यूस कर दिया और वही डिटेंशन का ऑर्डर भी दे रहा है, तो आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 से कंप्लायंस नहीं होगा। रीज़न इसका ये है कि मैजिस्ट्रेट ऐसी सिचुएशन में जुडिशियल माइंड नहीं अप्लाई कर पा रहा है इन द फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है। होता ये है कि जिस मैजिस्ट्रेट ने अरेस्ट किया, अब वो उस एरिया का भी मैजिस्ट्रेट है और उसी के सामने मान लीजिए लाया गया, तो यही हो जाएगा कि जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है वही डिटेंशन ऑर्डर भी दे रहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस केस में ये ओपिनियन था कि चूंकि ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट कैन नॉट अप्लाई जुडिशियल माइंड टू द फैक्ट ऑफ द केस एज ही वुड इफ ही वर अ जज, तो आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 का ड्यू कंप्लायंस नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में कंप्लायंस मान लिया गया देन दैट वुड अमाउंट that he would be a judge in his own cause, and the policy of law is that the magistrate before whom a prisoner is produced must be in a position to bring an independent judgment to bear on the matter। आप एक मैक्सिम जानते होंगे that no man shall be a judge in his own cause, तो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इस पे एक ही व्यू नहीं है, थोड़े डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं, पर मेरे हिसाब से यही व्यू कोट करने के लिए ठीक रहेगा अगर आप उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे स्टेट्स में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। इसका एक कॉन्ट्ररी व्यू भी है, ठीक है, दे आर जजमेंट्स डिसएग्रीइंग विद दिस व्यू पॉइंट, लेकिन मेरे हिसाब से वो कॉन्ट्ररी व्यू थोड़ा आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 को थोड़ा ख़राब कर देगा। तो लिबरल व्यू पॉइंट्स आर ऑलवेज बेटर व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जामिनेशन, ठीक है। जब पोजीशन पे बैठ जाइएगा तब आप उन जजमेंट्स को रेफर करिएगा जो थोड़ा कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट लेते हैं, बट वाइल राइटिंग एन एग्जामिनेशन इट इज़ ऑलवेज बेटर टू साइड विद लिबरलिज्म, ठीक है। तभी मैंने ये जजमेंट कोट किया है और मैं दूसरा जजमेंट अभी नहीं बताऊंगा, पता चला वही जजमेंट दिमाग में रह गया और एग्ज़ाम में गड़बड़ हो गई। अब याद रखिएगा कि द मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट सपोज टू एक्ट मैकेनिकली but should apply judicial mind to see whether the arrest of the person produced before him is legal, regular and in accordance with law. Otherwise, the protection afforded by Article 22 Clause 2 would be meaningless. याद रखिएगा ये जो प्रोविजन है ना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन अरेस्टेड मैन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, ये कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है बट एक पर्पस के लिए है, और पर्पस ये है जिससे पर्सन अरेस्टेड कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल, और अगर वो बेल पे नहीं रिलीज़ कर सकता तो उसे प्रॉपर कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में मैजिस्ट्रेट डाले, ठीक है। और यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का ये भी काम होगा डिटरमाइन करने का कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अरेस्ट इलीगल है एसेट्रा एसेट्रा, दे आर न्यूमरस सर्कमस्टांसेस। तभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैजिस्ट्रेट को इंट्रस्ट कर रहा है इस ड्यूटी से कि आप अपनी जो जुडिशियल माइंड है, आपका जो जुडिशियल माइंड है उसको ढंग से अप्लाई करिएगा, ठीक है। ये कोई फॉर्मेलिटी के पर्पस के लिए नहीं है। किन्हीं किन्हीं सिचुएशन में अगर मैजिस्ट्रेट खुद ही विटनेस है अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, ही इज नेम्ड एज अ विटनेस, तो वो रिमांड का ऑर्डर नहीं दे सकता, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि अगेन ही इज़ नॉट एन इम्पार्शियल पर्सन एंड ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू बेयर एन इम्पार्शियल माइंड अपॉन द केस, ठीक है। इस पर भी एक अथॉरिटी है, उसका नाम है वीरभद्र प्रताप सिंह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आजमगढ़, AIR 1959, इलाहाबाद, पेज नंबर 384। सुप्रीम कोर्ट का केस इन पॉइंट पे जो है वो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया था मैजिस्ट्रेट्स को, नॉट मैजिस्ट्रेट्स, जस्ट द मैजिस्ट्रेट, वो पास्ड एन ऑर्डर ऑफ रिमांड अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन विदाउट द अक्यूज्ड हैविंग बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम पर्सनली।
उनके सामने अक्यूज पर्सन पर्सनली आए भी नहीं थे, और जो मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने ऑर्डर ऑफ रिमांड दूर से ही पास कर दिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था मैजिस्ट्रेट को, और बोला था कि जो मैजिस्ट्रेट है ही एक्टेड इन अ वेरी कैजुअल वे, and it was a great pity that the magistrate acted without any sense of responsibility or genuine concern for the liberty of the subject, and the police officer acted deliberately and malafidely, and the magistrate aided him either by colluding with him or by his casual attitude. Certainly, that was a gross violation of the constitutional right of the accused person under Article 21 and Article 22, and the court ordered the state to pay 50,000 rupees to the concerned person as monetary compensation. यहाँ पे पेनल डैमेजेस अवार्ड हुए थे, ठीक है। ये केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये टॉर्ट्स में भी बहुत कोर्ट होता है। कौन से ईयर में ये रिपोर्ट हुआ था? AIR 1986, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 494। अब जो चौथा रूल है आर्टिकल 22 में, वो ये है कि नो पर्सन इज टू बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, एक तो मैजिस्ट्रेट के सामने लाना ज़रूरी है, दूसरा 24 घंटे से ज़्यादा उसको कस्टडी में रख नहीं सकते। तो अगर 24 घंटे से ज़्यादा रखा तो क्या होगा? देखिए, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की सिचुएशन में चला जाएगा। अरेस्ट अगर 24 घंटे से ज़्यादा के लिए हो गई without the authority of the magistrate, arrest and detention is for a period exceeding 24 hours without the authority of the magistrate, then in that situation arrest will become illegal. ठीक है, तो wrongful confinement के लिए prosecution would be maintainable against the erring police officers. In fact, Supreme Court ने तो यहाँ तक बोला है कि जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स डेलिबरेटली ऐसा करें, वहाँ पे सेक्शन 220 ऑफ द IPC मस्ट बी इन्वोक्ड। एक बार इन सेक्शंस को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। बस इतना जान लीजिएगा कि 220 पे मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो 7 साल तक का है। सो वेयर एवर इट इज़ फाउंड बाय द कोर्ट्स दैट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ और द पुलिस अथॉरिटी has acted in the breach of the constitutional requirement that the accused or the person arrested who is detained in custody, he has to be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest, excluding the time necessary for the journey. वहाँ पे अगर इस पॉइंट का वायलेशन पाता है कोर्ट्स, जनरली चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो चाहे वो कोई भी जज हो, इन दैट सिचुएशन वहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का प्रोसिक्यूशन और सेक्शन 222 ऑफ द IPC का प्रोसिक्यूशन वुड एंटेल अपॉन द पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, अब ये थोड़ा डिस्कशन CRPC में चला जाएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं CRPC ना डिस्कस करूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेनली आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे कन्फाइंड रहना है। पर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मैजिस्ट्रेट पता कैसे करेगा कि अक्यूज पर्सन या अरेस्टेड पर्सन इज़ इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। ऑब्वियसली वो सर्च वारंट इश्यू कर सकता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ सच पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स, है ना। बहुत कुछ कर सकता है मैजिस्ट्रेट। CRPC में मैजिस्ट्रेट के पास बहुत सारी पावर्स हैं। खैर, इस रिक्वायरमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बड़ा ही स्ट्रांगली अर्ज किया है कि ये बहुत ज़रूरी है कि इट शुड बी स्ट्रिक्टली एंड स्क्रूपलेसली बी ऑब्जर्व्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, दैट हैज़ बीन ओपाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। केस इज द साइटेशन इज AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 928। अब जरा क्लॉज 3 पे आ जाते हैं, आर्टिकल 22 पे। वो कहता है कि नथिंग इन क्लॉजेज 1 एंड क्लॉज 2 शैल अप्लाई to a person who for the time being is enemy alien or be any person who is arrested or detained under law providing for preventive detention। तो ये 2 एक्सेप्शन है। ठीक है, अब ये जो प्रोविज़न है ना आर्टिकल 22 में, स्पेसिफिकली आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, ये और भी कई चीज़ों पे नहीं अप्लाई करते, और मैं आपको एक्सेप्शन अभी बता देता हूँ, along with the exceptions that have been already been given in clause 3 of article 22। कहाँ ये और नहीं अप्लाई करते? पहला,
अरेस्ट ऑफ अ डिफेंडेंट बिफोर जजमेंट अंडर CPC. दूसरा, अरेस्ट ऑफ द जजमेंट डेप्टर इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अंडर CPC. तीसरा, where a person is arrested under a revenue recovery legislation to recover the arrears of land revenue. और चौथा, अबडक्टेड पर्सन्स रिकवरी एंड रिस्टोरेशन एक्ट 1949 में भी ये प्रोविजन नहीं अप्लाई करते. अच्छा, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि द पर्सन अबडक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान वर रेस्क्यूड, ठीक है, और उसके बाद वो जो पर्सन्स जिनको रेस्क्यू किया गया था दे वर टेकन इन कस्टडी एंड डिलीवर्ड टू द कस्टडी ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द कैंप फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न टू पाकिस्तान. अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजैब सिंह में रूल किया कि this was not the kind of arrest that is contemplated by Article 22 because there was no allegation or accusation of any actual or apprehended commission by that person of any offence of a criminal or quasi criminal nature. तो किसी भी अरेस्ट में ये ज़रूरी है कि अरेस्ट इज़ ड्यू टू अ क्रिमिनल और क्वाजाई क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, तभी आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 अप्लाई करता है, ठीक है. क्लॉज 3 के एक्सेप्शंस ध्यान में रखिएगा और जो एक्सेप्शंस मैंने बताए उनको भी ध्यान में रखिएगा. ये फोर्थ पॉइंट आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं कि अरेस्ट ऑफ अ डिफेंडेंट बिफोर जजमेंट या अरेस्ट ऑफ अ जजमेंट आफ्टर इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अंडर CPC या अरेस्ट अंडर रेवेन्यू रिकवरी लेजिस्लेशन टू रिकवर एरियर्स ऑफ रेवेन्यू, वहाँ पे आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और 2 नहीं अप्लाई करेगा. वैसे एक केस और बताता हूँ, वो है अनवर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 337, जहाँ पे फॉरेनर entered into India illegally and he was ordered to leave India, but he didn't leave India. Then he was arrested for the purpose of deportation. ऐसी सिचुएशन में ये जो अरेस्ट है for the purpose of deportation, that does not fall under Article 22. The foreigner concerned had no right to enter and remain within India, and the constitutional protection against illegal deprivation of personal liberty construed in a practical way cannot entitle non-citizens to remain in India contrary to the law governing the foreigners. अब इनका एक और एक्सेप्शन भी है, क्या है कि अगर कोई पर्सन इज अरेस्टेड इन परसुएंस ऑफ अ वारंट, ठीक है, if a person is arrested in pursuance of a warrant, then there is no need for strict compliance of Article 22 clause 1 and Article 22 clause 2, ठीक है, क्योंकि जो जुडिशियल व्यू है वो ये है, ये भी अजैब सिंह में ही स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजैब सिंह के ही जजमेंट में बताया गया था कि जुडिशियल व्यू जो है वो ये है कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, they provide the protection against the act of an executive or non-judicial authority, ठीक है, it provides the protection against the act of an executive or non-judicial authority, and these articles apply when a person is arrested without a court warrant. तो जहाँ पे कोर्ट वारंट है वहाँ पे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है द वारंट एक्स फेसी, वारंट अपने पे ही सेट आउट कर देता है रीजंस फॉर द अरेस्ट, एंड द अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करना ही पड़ता है कोर्ट के सामने, क्योंकि जो वारंट जब भी जाता है तो वारंट से सीधे जेल नहीं ले जाया जाता है. जब भी कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट करता है तो उसके परसुएंस में जब कोई पर्सन अरेस्ट होता है देन द पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट. तो आर्टिकल 22 का जो कंप्लायंस है वो अपने आप हो जाता है, ठीक है. और साथ ही साथ जो जुडिशियल माइंड है इट हैज़ ऑलरेडी बीन अप्लाइड एट द टाइम ऑफ इशूइंग द वारंट, हेंस अगेन आपको पूरा कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं होती आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 से, ठीक है. याद रखिएगा ये जो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 का जो प्रोटेक्शन है इट इज़ ओनली इन केस वेयर द अरेस्ट हैज़ बीन मेड विदाउट अ कोर्ट वारंट, ठीक है, जहाँ पे जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन नहीं हुआ है वहीं पे ये प्रोटेक्शन है. जहाँ पे जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन हो गया है वहाँ पे प्रोटेक्शन ज़रूरी नहीं है. और ऊपर से अगर आप वारंट देखते भी हैं तो आपको पता है कि वारंट में लिखा होता है रीजंस फॉर अरेस्ट, साथ में जो पर्सन अरेस्ट होता है उसको कोर्ट ले जाया जाता है, ठीक है. तो एक ऑटोमेटिक कंप्लायंस हो ही जाता है आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 से, ठीक है.
तो याद रखिएगा कि ये जो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का जो प्रोटेक्शन है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव या नॉन जुडिशियल अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, जुडिशियल अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। जब भी कोर्ट रिलीज कर रहा है वारंट ऑफ अरेस्ट, देन द प्रोटेक्शन इज बाय वन व्यू द प्रोटेक्शन इज नॉट देयर, ठीक है। यू डोंट हैव टू कंप्लाई विद आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 क्लॉज 2। बट लॉजिकली स्पीकिंग जो चीज़ एक्सप्रेसली नहीं करनी पड़ रही है वो बैकडोर से कंप्लाई हुई जा रही है, तो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 मेरे हिसाब से। अब हम आ जाते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स अ डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय द कोर्ट, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सस्पेशन के बेसिस पे ऑर्डर कर सकती है। अब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, इट इज़ फंडामेंटली एंड क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट दैट इज आफ्टर द ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय क्रिमिनल कोर्ट। तो हम दो तरीके की इम्प्रिजनमेंट मानते हैं या दो तरीके की डिटेंशन मानते हैं, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक प्यूनिटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में prosecution of an offense may or may not be there, while punitive detention is always at the end of the trial. By punitive detention में a person is being punished, ठीक है। इसका मतलब है कि जो offenses चार्ज हुआ, जो prosecution हुआ, वो offenses प्रूव हो गए और डिफेंडेंट was actually found guilty, तो वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रायल होता है। However, in preventive detention देर इज़ नो ट्रायल, और बिना ट्रायल के ही किसी पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है। तो ये जो डिटेंशन होती है, इट इज़ नॉट टू पनिश एन इंडिविजुअल फॉर एनी रॉन्ग डन बाय हिम, बट इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ curtailing हिज लिबर्टी विद अ व्यू टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग सर्टेन इंजेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है। तो नाम में ही आपका सीक्रेट छुपा है। प्रिवेंटिव मतलब टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अगर एग्जीक्यूटिव को लगता है दैट अ पर्सन इज अबाउट टू कमिट एन एक्ट, let us suppose he is about to jeopardize the security of the state, तो preventive detention हो सकती है, ठीक है। अब unlike in democratic countries like Britain, USA and Canada, जहाँ पे preventive detention is not a peacetime measure, it is only a wartime measure, in India the constitution itself is visualizing the possibility of a law of preventive detention। अब जरा मैं legislative entries की थोड़ा बात कर लेता हूँ in context of preventive detention। तो पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली एंट्री 9 लिस्ट 1, ठीक है, लिस्ट 1 की एंट्री 9 देखिएगा 7 शेड्यूल की, वहाँ पे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के मैटर्स पे पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन पे, इन तीन मैटर्स पे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तीसरी लिस्ट की एंट्री 3 में, दैट इज द कंकरेंट लिस्ट, उसकी एंट्री 3 में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कॉन्करेंटली लॉ बना सकती हैं फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर द रीजंस कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी, ठीक है। तो इस कंपैरिजन में ये कहा जा सकता है दैट द पार्लियामेंट हैज अ वाइड लेजिस्लेटिव जुरिसडिक्शन इन द मैटर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, as it can enact a law providing for preventive detention for the reasons connected with all the 6 heads mentioned in list 1 and list 3। list 1 में तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, पर लिस्ट 3 में कॉन्करेंट पावर है, पार्लियामेंट भी कर सकती है, स्टेट भी कर सकती है। पार्लियामेंट किन किन ग्राउंड्स पे कर सकती है? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, maintenance of supplies and services essential to the community। I am of course reading entry 9 list 1 and entry 3 of list 3 together। तो पार्लियामेंट इन सारे ग्राउंड्स पे कर सकती है, while the state legislatures can make a law for preventive detention for the reasons connected with the security of the state, maintenance of public order, maintenance of supplies and services essential to the community। सिर्फ इसी ग्राउंड्स पे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो क्लॉजेस शुरू हो रहे हैं ना क्लॉज 4 से, उस कॉन्टेक्स्ट में आप एक छोटी सी चीज़ लिख लीजिएगा अपने ही बेयर टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे कि पार्लियामेंट एंट्री 9 लिस्ट 1, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर्स लिस्ट 3 एंट्री 3,
वहाँ पे लिख लीजिएगा कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों उसमें कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया क्या है, तो जिससे फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आपको ध्यान रहे कि इसका एक कनेक्शन लेजिस्लेटिव एंट्री से भी जाता है, तो इसीलिए उसका एक स्मॉल पॉइंट लिख लीजिएगा अपने बेयर टेक्स्ट पे ही, ठीक है। मैं फिर रीइटरेट किए दे रहा हूँ, पार्लियामेंट अंडर लिस्ट 1 ऑफ एंट्री 9 it can provide a law for preventive detention which is connected with defense, foreign affairs or security of India, और लिस्ट 3 की एंट्री 3 के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कैन मेक अ लॉ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर द रीजंस कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी। तो इससे आपको ये पता चलता है कि पार्लियामेंट हैज़ अ वेरी वाइड लेजिस्लेटिव जुरिसडिक्शंस इन द मैटर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही मैटर्स पे फ्रेम कर सकती है। और साथ ही साथ एक और बात बता दूँ, ये जो एंट्रीज़ हैं ये पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर को एग्जॉस्ट नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही मैटर्स पे प्रिवेंटिव डिटेंशन पार्लियामेंट ऑर्डर कर सकती है, नॉट ऑर्डर मतलब लेजिस्लेट कर सकती है। पार्लियामेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स रेसिड्यूरी पावर और भी लॉज इनैक्ट कर सकती है जिनमें वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ग्राउंड्स इस्टेब्लिश करे। फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ दैट पार्लियामेंट हैज़ इनैक्टेड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974 अंडर इट्स रेसिडुअरी पावर, ठीक है, दैट इज रेड विद एंट्री 36 ऑफ लिस्ट 1। एंट्री 36 जो है ऑफ लिस्ट 1 इट टॉक्स अबाउट करेंसी कॉइनेज एंड लीगल टेंडर एंड ऑल्सो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और रेसिडुअरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट is contained under entry 97 which says that any matter which does not fall under list 2 or list 3 would belong to exclusive dominion of the parliament। अब exactly ये नहीं कहता पर उसका context यही है। exactly तो वो ये कहती है any other matter not enumerated in list 2 और list 3 including any tax not mentioned in either of those list, वो एंट्री 97। तो इसको हम रेजिडुअल पावर कहते हैं कि जहाँ पे कोई भी मैटर स्टेट लिस्ट में नहीं फॉल करता या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं फॉल करता उसमें पार्लियामेंट अलोन के पास जुरिसडिक्शन है, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 अपनी रेसिड्यूरी पावर के एक्सरसाइज में, मतलब लिस्ट 1 एंट्री 97 रेड विद एंट्री 36 को लिंक करते हुए प्रिवेंटिव डिटेंशन का लेजिस्लेशन फॉर्म किया था। तो याद रखिएगा पार्लियामेंट के पास प्रिवेंटिव डिटेंशन की बहुत वाइड पावर्स हैं, ठीक है, इवन अपार्ट फ्रॉम दोज एक्सप्रेसली मेंशन्ड, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट्स मैं चाहता हूँ आप लिखें ज़रूर। अब आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 to 7 कुछ सेफगार्ड्स ले डाउन करते हैं विच प्रोवाइड फॉर मिनिमम प्रोसीजर विच मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन एनी केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो if a law of preventive detention or administrative action infringes any of these safeguards, then the law or the action would be invalid as infringing the fundamental right of the detainee। अब ये मटेरियल नहीं है कि whether or not these constitutional safeguards have been incorporated into the law authorizing preventive detention, क्योंकि अगर वो नहीं भी incorporate होते हैं then also they would be deemed to be the part of the law as a superimposition by the constitution which is the suprema lex of the land। suprema lex मतलब supreme law of the land, ठीक है। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके बात कर रहा है उसमें कुछ सेम्बलेंस ऑफ नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, इररेशनल प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा a law providing for preventive detention would be subject to the constraints of article 19 and article 21 as well। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब तक मैं एक गोपालन वाला पॉइंट आर्टिकल 21 में डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, क्रिमिनल जस्टिस के कंटेक्स्ट में, इसलिए वहीं पे बताया था। याद रखिएगा एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन वुड बी सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ आर्टिकल 19 एंड 21। साथ ही साथ ऐसे लॉज के अंदर देयर शुड बी सम सेम्बलेंस ऑफ नेचुरल जस्टिस, थोड़ा प्रोटेक्शन होना चाहिए which has to be provided to the person whose personal liberty has been taken away by an administrative order। साथ ही साथ ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल 22 का क्लॉज 4 to क्लॉज 7 में जो सेफगार्ड्स दिए हैं वो मिनिमम प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहे हैं which should be observed in any case of preventive detention,
ठीक है। अब उनका स्टैट्यूट बुक में होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है, तो कोर्ट वुड रीड इट इनटू द स्टैट्यूट इवन इफ इट इज़ नॉट एक्सप्रेसली लेड डाउन। हाउएवर प्रैक्टिस में बता दूं, प्रैक्टिस में एक्सप्रेसली वो लेड डाउन होते हैं कि एडवाइजरी बोर्ड का क्या प्रोसीजर होगा, एसेट्रा एसेट्रा, कितने टाइम में आपको कम्युनिकेट डिटेनी को कम्युनिकेट किया जाएगा, कब वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, कितने ड्यूरेशन के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकती है, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, ये होता है। अब क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम आर्टिकल 22 के क्लॉज 5 टू लेके क्लॉज 7 तक, और जुडिशियल व्यू प्राइमरली क्या है, जुडिशरी ने कब कब इंटरफेयर किया है, उन सबको लेके डील करेंगे। ठीक है, इस पर काफ़ी ज़्यादा केस लॉज है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, आर्टिकल 21 और 19 से तो ज़्यादा अब तो कोई भी केस लॉ नहीं आएंगे, लेकिन कुछ केस लॉज हैं जिनको समझाना ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई वुड सी यू टुमारो।